topic number 3.8, that is parallel processing. It is about instruction pipelining. Okay. The purpose of instruction pipelining is to speed up the execution by doing multiple things parallel. We know that whenever we want to get any program executed by computer, first we are writing that program, and that program is loaded into main memory. Okay. Consider there are 10 instructions in that program. So every instruction has to go inside the processor to get it execute. Okay, so processor will fetch one instruction, then another, then third, fourth, 5, 6, and all 10, one by one. That is called sequential execution, and it will require much more time for completing that whole program. Okay. So we are having alternative of that, that is parallel processing, parallel executing instruction, so then we can increase the speed of execution. In a shorter time we can execute the one program. So using parallel processing or the instruction pipelining, we can increase the speed of execution, and we know that every instruction has to go under three phases, that is instruction fetch, decode, and execute. Initially the whole program is stored in main memory. The first instruction will be fetched from that main memory to processor and will be stored in one of the registers, that is called fetch. Then second phase is to decode that instruction, means to identify what type of operation it has to perform and on what operand that operation has to perform, and that is called decoding, and then actually performing that operation on that operand, that is the execution. Okay. So every instruction has to go under these three phases, and that three phases of executing one instruction is called one instruction cycle. Okay. So suppose we are having 10 instructions, then we will require 10 instruction cycle for executing whole program of 10 instructions. Now our goal here is to execute all these instructions parallelly. So look at this diagram. This diagram structure is called pipelining. Okay. Initially first instruction is fetched from memory, then it is decoded. While first instruction is in decoding phase, the second instruction is fetched from memory. मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को हमने फैच किया, ओके, वो भी फैच करने के बाद वो डिकोडिंग के लिए जाएगा, मीन्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें ऑपकोड है, क्या ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन किस ऑपरेंड पे करना है. तो जब वो डिकोडिंग हो रहा होगा उस टाइम पे हमने प्रोसेसर को दो यूनिट में डिवाइड करके रखा होगा. वन इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट एंड अनदर इज बस इंटरफेस यूनिट और देन फैच यूनिट. तो फैच यूनिट पहले फैच करेगा, फिर वो नेक्स्ट यूनिट को दे देगा एग्जीक्यूशन यूनिट को. एग्जीक्यूशन यूनिट में ही डिकोडिंग होगा, क्या आइडेंटिफाई करेंगे. जब तक इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है तब तक बस इंटरफेस यूनिट फ्री रहेगा, तो वो दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच करके रख देगा. अब पहले वाला इंस्ट्रक्शन जो डिकोड होने के बाद ALU में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, तो जो फैच करके रखा है वो डिकोडिंग में चला जाएगा, और फिर बस इंटरफेस यूनिट वापस फ्री हो गया तो वो थर्ड इंस्ट्रक्शन उठा लेगा मेमोरी में से प्रोसेसर में. ओके, सो दिस इज द कॉल्ड पाइपलाइन. Initially first instruction is fetched from memory, then it is decoded. While first instruction is in decoding phase, second instruction is fetched from memory. When first instruction enters into execution, second is in decoding phase and third instruction is fetched from memory. So at a time we can have three instruction in a processor. One is in decoding phase, execution phase, another instruction is in decoding phase, and third instruction is in fetching phase. Okay, so in this way we can achieve parallel processing. So it ultimately improves performance by maintaining multiple instructions in a different phases of execution. So look at this diagram. Here we will show the difference between sequential execution of any program and then parallel execution of any program using pipeline. Okay, so look at this example. This example shows how 4 instructions are executed in sequential manner and in a pipeline manner. Pipeline manner means parallel manner. Okay, so first we will see about sequential execution of 4 instructions without pipelining, without using concept of parallel processing. Okay, so look at this diagram. Here we are having clock cycles T1, T2, T3 and so on. Here this 3 rows represent first fetch phase, decode phase and execute phase. And we know that suppose we are having 4 instructions in a process in a program, all that 4 instruction has to go under these 3 phases. तो सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो T1 क्लॉक साइकिल पे हम फर्स्ट नंबर का इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम में से उसे उठा के हम प्रोसेसर में ले जाएंगे, मीन्स फैच करेंगे. फिर जब क्लॉक पल्स T2 आएगी
तो वो जो फेच करके रखा था वो डिकोडिंग में चले जाएगा। और दूसरा इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे अभी फेच नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो हमारा जो फेच वाला फेस है मीन्स एक बस इंटरफेस यूनिट जो है प्रोसेसर का वो फ्री बैठे रहेगा। ओके, और जब तीसरी क्लॉक साइकिल आएगी मीन्स टाइम यूनिट थर्ड आएगा तब हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन जो डिकोडिंग में था वो एग्जीक्यूशन में जाएगा। और बाकी के जो पेरिफेरल्स मीन्स हार्डवेयर ओके या सर्किट्स है जो फ्री रहेगी। और T3 पे ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा होगा। अब एक इंस्ट्रक्शन ने तीनों फेजेस में से पास हो गया, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरी हुई, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब T4 पे दूसरा इंस्ट्रक्शन हम फैच करेंगे, T5 पे उसको डिकोड करेंगे, T6 पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब 6 क्लॉक साइकिल हो चुकी है, 2 ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि एट ए टाइम हम एक ही काम कर रहे हैं। फिर T7 पे तीसरा इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे, T8 पे डिकोड करेंगे, T9 पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, T10 पे चौथा इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे, T11 पे उसे डिकोड करेंगे एंड T12 पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने देखा कि सिक्वेंसली एक इंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद ही हम दूसरा फैच कर रहे हैं, वो पूरा होने के बाद ही हम तीसरा फैच कर रहे हैं। ऐसे यदि हम करेंगे तो 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, हमें टोटल T12 इतनी मतलब 12 क्लॉक पल्स लगेगी, इतना टाइम लगेगा। ओके, सो यदि इसी को हम यदि पैरेलल में करें, 4 इंस्ट्रक्शन को हम पैरेलल यूजिंग पाइपलाइनिंग कंसेप्ट हम एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, लुक एट दिस डायग्राम। इनिशियली जब T1 साइकिल आएगी तो हम एक इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। हमारा बस इंटरफेस हमने प्रोसेसर को 2 यूनिट में डिवाइड करके रखा है, बस इंटरफेस यूनिट जिसमें हमारी एड्रेस डेटा बस एंड कंट्रोल बस रहेगी, दूसरा एग्जीक्यूशन यूनिट उसमें हमारा ALU और एक्यूमुलेटर रहेगा, और उसके सपोर्टिंग रजिस्टर जो हमें एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए या डिकोडिंग के लिए चाहिए। ओके, तो T1 क्लॉक पल्स से हम मेमोरी में से उठा के एक इंस्ट्रक्शन वाया बस ही एक रजिस्टर में ला के प्लेस कर देंगे, मीन्स फैच कर देंगे। अब दूसरी क्लॉक पल्स आएगी, ओके, उसके थोड़े टाइम के बाद जो दूसरा T स्टेट आएगी तब हम क्या करेंगे, जो हमने एग्जीक्यूशन फैच किया था उसे हम डिकोडिंग में ले जाएंगे, तो वो हमारे दूसरे यूनिट में चले जाएगा, वहाँ पे डिकोडिंग हो तो हमारा बस इंटरफेस फ्री है, बसेस हमारे फ्री है, तो वहाँ पे हम एड्रेस में मीन्स एड्रेस बस में हम एड्रेस रख के दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच कर लेंगे। और पैरेलली दूसरे यूनिट में ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डिकोड होते रहेगा। तो यहाँ पे T2 पे वी आर हैविंग 2 इंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस। T3 आएगी तो ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का डिकोडिंग होने के बाद उसे हम उस टाइम पे एग्जीक्यूशन में चले जाएगा, जो हमने फैच करके रखा था इंस्ट्रक्शन नंबर 2 दैट विल गो इन डिकोडिंग फेज। और अभी हमारा बस इंटरफेस यूनिट फ्री है तो हम तीसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फैच कर लेंगे। तो वी कैन सी एट T3 वी आर हैविंग 3 इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोसेसर, एक एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा डिकोड हो रहा है और तीसरा अभी फैच करके रखा है वेटिंग में। ओके, एंड एट T3 हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूशन उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब T4 साइकिल जब आएगी तो हमारा जो T2 जो डिकोडिंग हो रहा था वो अभी एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फैच होके रखा था वो डिकोडिंग में आ जाएगा, और हम नया जो हमारा चौथा और लास्ट इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम का उसे हम फैच करेंगे। तो T4 पे भी हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन पैरेलली प्रोसेसर में रहेंगे, एक डिकोड हो रहा है, एक एग्जीक्यूट हो रहा है, एक डिकोड हो रहा है, एक नया फैच करके रखा है। T5 जब आएगी, यहाँ पे देखो पहले T4 में इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया। ओके, T5 आई तो एग्जीक्यूशन यूनिट फ्री हो गया, तो वहाँ पे हम I3 इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूशन में ले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को हम डिकोडिंग में ले जाएंगे। अब प्रोग्रामिंग पूरा हो गया तो हम फिर नहीं लेंगे, यह आइडल रहेगा। जब इंस्ट्रक्शन T स्टेट नंबर 5 रहेगी तो उस पूरी होने के साथ ही इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का एग्जीक्यूशन भी पूरा हो जाएगा, 4 का डिकोडिंग पूरा हो जाएगा, और T6 पे हम इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को भी एग्जीक्यूशन में ले जाके उसका एग्जीक्यूशन T6 पे पूरा करें। तो हमने देखा if we are using pipelining concept parallel processing approach we can execute 4 instruction in T6, means total number of clock cycle required for executing 4 instruction in parallel or pipeline manner is 6 only, which is half of the sequential execution। तो हमने स्पीड डबल कर दी। ओके, टाइम कम लगा, 12 क्लॉक पल्स की जगह पे हमें सिर्फ 6 ही क्लॉक पल्स लगी। ओके, सो दिस इज पैरेलल प्रोसेसिंग। Okay, that's it.